Next session is on self-stigma of masculinity. Can we have the video before I introduce the panel to you, please? In India, boys are often told, "Mard ko dard nahi hota." Men don't feel pain. But what happens when emotions are suppressed in the name of masculinity? This is self-stigma of masculinity, where men internalize societal expectations and suppress their emotions. It's a silent burden of patriarchy, one that affects mental health, relationships, and even self-worth. India's National Crime Records Bureau data shows that more than 70% of suicide victims in India are men. Yet, conversations around male mental health remain rare, often dismissed as a weakness. From workplaces to families, emotional suppression creates distance, anxiety, and an inability to seek help. The pressure to be strong leaves many men isolated. But breaking this cycle starts with acceptance. Seeking help, expressing emotions, and redefining masculinity can lead to healthier lives and stronger relationships. True strength lies in embracing emotions, not suppressing them. Let's change the narrative, because real men do feel. Patriarchy doesn't just harm women, it harms everyone. Men, too, bear the burden of rigid expectations, and so do queer individuals who are often denied their right to express themselves freely. True progress comes when we respect each person's choices, strengths, and vulnerabilities without bias towards any gender. Thank you, team, for these wonderful AVs. I would like to now invite on stage Anil Murthy sir, Barkhat Rehan ma'am, Prerna Vats. Prerna is a PhD scholar in Women and Gender Studies at Ambedkar University, Delhi. Her research revolves around dissemination of comprehensive sexuality education for adolescents in India. She is also a certified sexually educator and has facilitated sessions with school as well as university students in India. She's also been involved in gender equality training program with ECHO India, which is centered upon capability and capacity building of school teachers from across the country. To moderate the session, I would like to invite Khurafati Nitin. Nitin is a renowned Indian radio jockey, celebrated for his engaging and mischievous style. Khurafati, meaning mischievous, was affectionately given by his mother during his childhood. Beyond radio, Nitin has ventured into acting, directing, and singing. He serves as the creative director for Gas Media and holds position in adjunct professor at Gurgaon University since May 2023. Nitin's dynamic career and dedication to both entertainment and social initiatives has been established and is a prominent figure in the Indian media landscape. So welcoming Khurafati Nitin to moderate this very important session. गुड इवनिंग. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इतनी देर रुके हैं इस पूरे इवेंट के लिए. क्या बात है भाई, साउंड वाला अपना नंबर दे के जाइए. मेरी आवाज़ में जितना बेस है उससे ज़्यादा बेस आ रहा है इसमें. अच्छा है, शायद वॉइस ओवर मिल जाएंगे थोड़े. बट आई एम रियली ग्लैड आई एम ओवर हियर. बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा. सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेल्फ स्टिग्मा ऑफ मैस्कुलिनिटी. हाल ही में मैंने अपने स्टेशन पे एक पूरी कैंपेन चलाई थी. जैसे इन्होंने कहा मर्द को दर्द होता है, उसी पे कुछ हमने कैंपेन चलाई थी. हमने कहा था धुन बदल के तो देखो, टू अंडरस्टैंड द पेरिल्स दैट इवन मेन हैव टू फेस. तो उस पर पूरा एक सेशन किया था. बरखा जी यहाँ पे बैठी है, इनके पुरुष आयोग ने मुझे एक अवार्ड से भी नवाजा था बिकॉज आई हाईलाइट द प्लाइट ऑफ मेन ऑन माई शोज़. And so it was very important for me to be a part of this session and moderator, because the fun thing is कि मैं ये सारी चीज़ें शो पे तो करता हूँ, but I identify myself as a feminist because I honestly believe that जितना इस क्षेत्र में काम किया जाए उतना कम है, तो करना ज़रूरी है. But before we start, I'd like to say something. पता है हम लोग बहुत privileged हैं. हम यहाँ पे हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मौका मिला है बात कहने का, पर ज़्यादातर जनता जो है हमारे देश की, उसको ऐसे मौके नहीं मिलते हैं. अब आज जो भी बातें आप सुनेंगे यहाँ पे, इन पैनलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है. हो सकता है ये आम जनता का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उससे परे हो, क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है कि शायद जनता ऐसा सोचती है. सब एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने यहाँ पर आए हैं. मेरी रिक्वेस्ट है, कोई लड़ाई मत करना प्लीज़. मेरे पैनल पे तो बिल्कुल मत करना. ये लोग लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, है ना. और मुझे किडनी स्टोन का दर्द हो रहा है. अगर मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो अगर लगे कि मैं बेहोश हो रहा हूँ तो कोई मुझे पकड़ लेना, और अगर ज़्यादा दर्द होगा तो शायद मैं चला जाऊँगा.
वी शुड बी वेरी एप्टली टाइम्ड बिकॉज जब आप लड़ेंगे तो मेरा दर्द शुरू हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा. बट थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट फॉर बीइंग ओवर हियर. दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट इमोशनल ऑल्सो, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आराम से सुनिएगा, बिकॉज कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो एक पेन पॉइंट सिर्फ उन फैमिलीज़ के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए पेन पॉइंट बना. इसलिए हम बड़ संयम से इसको पूरे को कंडक्ट करने की कोशिश करें. मेरा पहला सवाल अनिल मूर्ति जी से होगा. अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, दे बिकम हाउस होल्ड नेम्स, हर कोई इनके बारे में जानता है. यू बीन वेरी वोकल अबाउट द केसेस, अबाउट द सुसाइड्स. उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं जब वो सामने आए तो उन्होंने यही कहा कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे बच्चों के साथ ये चल रहा था, उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा था. क्या आपको लगता है कि ये फॉल्स सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी है, मर्दानगी है, इस वजह से शायद वो सामने नहीं आ पाए और हेल्प सीख नहीं कर पाए? वॉज दैट पुलिंग दम बैक? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, अतुल्स केस इज एन एक्सेप्शन, आई विल कम टू दैट जी. बट मोस्ट मैन जो हमारे पास आते हैं, दे कम व्हेन इट इज पेन इज अनबियरेबल. मतलब अर्ली स्टेज में नहीं आएंगे, केस की स्टेज में नहीं आएंगे, 5-6 केस हो गया, मतलब ट्रॉमा इज, दे आर रियली इन ट्रॉमा, नॉट लाइक ए डिप्रेशन और एनीथिंग, बिकॉज दे रेजिस्ट सीकिंग सपोर्ट. ओके, और उनको मतलब देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन्वॉल्व. तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैन डोंट सीक हेल्प, यू नो दैट राइट. तो वही होता है कि व्हेन इट इज टू मच, और समटाइम्स इट इज द सिस्टर हु ब्रिंग्स, यू नो. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. इट्स अ फेमस केस. तमिल एक्टर प्रशांत, you will relate to him if you know a movie called Jeans. Aishwarya Rai, Jeans, he played the double role, 1997. So when he got into that thing in 1997, his father called us. But what happened actually was, it is his sister who found us. So she was inside our communities online, and then she convinced the whole family. So often it's the women who try to, you know, bring the man, so they register it. Yeah. Right. पर अतुल के केस के बारे में जब बात करूं तो मुझे पता लगा अतुल कि के केस के बारे में आई विल टेल यू. आप इनफैक्ट आप पर्सनली उनको जानते थे, आप उनके साथ रहे भी हैं. पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, एक सवाल आप एक साथ ही जवाब दीजिएगा कि क्या जब आप उनके साथ रह रहे थे कभी आपको ऐसा लगा कि इतने परेशान हो शायद इतना बड़ा कदम उठा लेंगे? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? उन्होंने इस बारे में बात की? नहीं, मैं आपको डेटा देता हूँ. December 9th when it happened, right? तो November 2nd, exactly kind of 1 month before, we were in a Taj in Yashwantpur called Bangalore, जहाँ पे हम 5-6 लोग बैठे हैं, and he's there, 5-6 लोग. So he's cool, relaxed. And then on 6th of November, I'll tell you the occasion, because Trump had won, and we were having a Zoom party. And he was playing music. I am suggesting him music, and he's playing all these Indian and American songs. एक YMCA करके गाना भी है उन लोगों का, वो play कर रहा है. And he's talking very casually. We have a complete Zoom recording of 2-3 hours. See, he has taken every step in 4-5 months not to give anybody an inkling. So he has meticulously planned. उनकी प्लानिंग मतलब इतनी हद तक है कि वो अपने जो कपबोर्ड के ऊपर में पूरा प्लान लिखे हैं, T-10 days जो बोलते हैं ना, 10 दिन पहले ये करना है, 9 दिन पहले ये करना है, मॉर्निंग क्या, मतलब he has literally planned. अब कोई आदमी उनकी जो गूगल फोल्डर है उसकी डेट है October 31st, एंड हम उसको 3 दिन के बाद मिले हैं जहाँ पे गूगल फोल्डर में रखा है, एंड उन्होंने रंबल में अपलोड किया क्योंकि रंबल से डिलीट नहीं होता. So he has calculated everything. And there are some other things I should not say because of legal angle. We know some of the things. So you see, if somebody is planning it like this for months, or it is not certainly due to trauma. Okay, if trauma होता तो हम जानते हैं. We have other cases ना, and I'll tell you one more data also. हमारे जो conference हुआ था 1 साल पहले, October 2023, 2 professors of Nimhans are there. We have a collaboration going on with Nimhans, which is the top mental health university. हम लोगों की एक partnership है एक therapy group के साथ में. Every volunteer gets free therapy up to 5-10,000 rupees. So he was eligible, and which was newly introduced. So we'll spend like 2-3 lakh rupees. All our 200, volunteers, they'll get it. It was eligible. He was eligible for it. Right. So we'll come back to this. Yeah. You just hold that thought. बरखा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ. मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, आप पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट हैं और अक्सर इस मुद्दे पे हमने बात भी की, आप मेरे शो पे भी आई हैं. आप क्योंकि आदमियों का इशू हैंडल करें, जैसे फॉर एग्जांपल
कई आदमी यहाँ पर होंगे अभी, चाहे ओन अप करे ना करे, पर उन्हें ऐसे लगेगा कि रूपम है या लहर है, ये तो हमारी व्यथा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो औरतें हैं, ये क्या जाने, है ना, ये क्या जाने हमारे मर्दों का दर्द। वैसे ही मर्द को भी औरतों को भी लग सकता है, अगर कोई, जैसे मैंने कहा मैं फेमिनिस्ट हूँ, अ लॉट ऑफ वुमेन माइट फील हाँ तू बोल तो रहा है पर तेरे को क्या पता महिलाओं का दर्द। वैसे ही जब आप आदमियों को रिप्रेजेंट करती हैं तो क्या आपके आड़े नहीं आती ये चीज़ कि आप तो एक महिला हैं, आप क्या समझेंगी मर्दों का दर्द? किसी ने कभी आपको इस बात का एहसास दिलाया? माइक वही लेना पड़ेगा, मैं अपना नहीं दूंगा। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नितिन जी, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। मर्द को दर्द होता है। मर्द एक वो प्राणी है जो बहुत ही इमोशनल है। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। और थोड़ा धुन बदल के तो देखिए, जैसा कि आपको नितिन जी ने अभी बताया था, पंकज त्रिपाठी से मेरी मुलाकात हुई थी, उसी दौरान हमने इसके बारे में बात की थी और उसके बाद इस इनिशिएटिव में मैंने भी हिस्सा लिया था और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। चश्मा बदलिए, धुन बदलिए, मर्द के दर्द को समझिए। वो अंधेरे कमरे में रोता है, उसकी जितने भी इमोशंस हैं वो आपको नहीं बताता, क्योंकि आप उसकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार है, आप हल नहीं देने के लिए तैयार है। ना कोई कानून है उनके लिए, ना कोई बात सुनने वाला है उनके लिए, ना कोई पटल है जहां वो अपनी बात रख सके, ना ही कोई हेल्पलाइन नंबर है। तो आखिर बेचारा करे तो करे क्या। लेकिन आपका जो सवाल था कि महिला, मुझे ऐसा नहीं, मुझे कभी आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आप हमारी बात नहीं समझ पाएंगी। यहाँ तक कि नोएडा का गार्ड, जिसको बहुत थप्पड़ पड़े थे, बड़ी घूंसे लात पड़ी थी, जिसके बाद ही मैंने पंकज त्रिपाठी से बात करी थी, वहाँ पर उस लड़के का ये कहना था, जब मैंने फ़ोन किया उसे और मेरे 2-4 फ़ोन तो उसने उठाए नहीं, फिर उसने बोला, आप हैरान हो जाएंगे उसकी बात सुन के, एक महिला इतना पीट के जा रही है, इतनी भद्दी गालियाँ दे के जा रही है, धक्के दे के जा रही है। एक महिला कह रही है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको अपने पास बुलाना चाहती हूँ, आपको एड्रेस शेयर कर रही हूँ, गाड़ी भेज रही हूँ, आप आइए, मैं आपसे बात समझना चाहती हूँ और आप कंफर्टेबल फील करें, आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहती हूँ और आगे आने वाले अवार्ड सेरेमनी में आपको अवार्ड भी देना चाहती हूँ। तो वो कह रहा था कि क्या हो गया है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी महिला क्या कह रही है और मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही एक और केस है सादत अली का, जो आज हमारा देश छोड़ के जा चुका है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब कोविड चल रहा था तो लखनऊ की रेड लाइट पे एक लड़के को 22 थप्पड़ पड़े थे। उसका कसूर उसे भी नहीं पता, हमें भी आज तक नहीं पता कि उसका कसूर क्या था। खैर एनीवेज, उसे रात भर डिटेन किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स को डिटेन किया गया। उसके बाद जब सारे वीडियो फुटेज आ गई सामने तो पता चला कि वो बेकसूर था। उसके बाद उसने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। आज वो भारत वर्ष छोड़ के चला गया। क्यों हम मजबूर कर रहे हैं या तो पुरुषों को आत्महत्या करने के लिए? इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए। और नितिन तो जी सुनते हैं जी, मेरी तो बहुत सुनते हैं। बस ये बताना था आपने मेरे को, आपने बाकी सारी बातें ऐड कर दी, मुझे अच्छा लगा, पर ठीक है। पर मुझे बताइए कि पेट्रियार्की की बात होती है बार बार, और कई लोगों को लगता है कि पेट्रियार्की से आदमियों का बहुत फ़ायदा होता है। हमने कई डिस्कशन भी सुनी कि इसकी वजह से ही समाज में दबाव बना पाते हैं, महिलाओं को नीचे रख पाते हैं। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पेट्रियार्की की वजह से मर्दों का भी नुकसान होता है? बिल्कुल, पेट्रियार्की से मर्दों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दे हैव बीन ओवरबर्डन्ड, दे आर इनटू प्रोटेक्टर प्रोवाइडर रोल 24/7। इसी वजह से आपने अपने पिताजी को, आप अपने पिताजी को सुनिए, वो क्या कहते हैं, जैसे ही कहीं जाना होता है शादी ब्याह में, सब घर वाले कपड़े ले लो, सब अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो, बाइक ले लो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, हमेशा गिफ्ट मोड पे रहते हैं, जो मेरा बैंक बैलेंस सारा तुम्हारे लिए है। लेकिन पिताजी को बोलो कि पिताजी आप भी कुछ ले लीजिए, अरे वो पड़ा तो है नीले वाला सूट, वो काले वाला सूट है तो ना। या अगर उनको आप यही बोल दो कि आज चलते हैं कहीं मूवी देख के आते हैं, अरे बेटा ये तो घर में ही देख लेंगे, इस पे क्यों खर्चा करना है, आप नए नए सामान ले लो। उसमें हमेशा वो उस मोड पे रहते हैं। ऐसे ही आपने हमेशा देखा होगा कि जो हस्बैंड्स भी हैं वो हमेशा अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन जब भी कोई छोटा सा जो प्रॉब्लम होता है, मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम किसी तरफ से भी होता था, लेकिन वो बड़ी तूल पकड़ लेता है।
तो वो रिलेशनशिप में जो सारनेस आ जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें आती है और उसकी वजह से हम पेट्रियार्की को कोसते हैं. इट इज़ नॉट पेट्रियार्की, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रियार्की इज हार्मिंग मेन मोर देन विमेन. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. उनका बर्डन कम कर दीजिए यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आपकी छोटी सी तकलीफ, ब्रेस्ट कैंसर, दुनिया हिल जाती है. सारी फंडिंग, सारी बातें. प्रोस्टेट कैंसर आपको उस एज में आता है जब आपके परिवार वाले भी आपको छोड़ के चले जाते हैं. आपके पास पैसे भी नहीं होते इलाज कराने के लिए, और अगर इलाज कराने के लिए पैसे हैं तो आपके पास बच्चे नहीं होते. और इतना घातक है, और करोड़ों केसेस है, लेकिन हम कभी नहीं बात करेंगे क्योंकि उस पर कभी फंडिंग नहीं आएगी, एक्कोलेड्स नहीं मिलेंगे, नहीं एसिड अटैक पे. नहीं, ब्लेमिंग फैमिली. अच्छा, एक और मैं बात कहना चाहूँगा आपसे, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से बैठे हुए हैं. मैं जब सवाल पूछूँ छोटे छोटे जवाब देंगे प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी जाना है. किडनी का दर्द आपको याद होगा, स्टोन का दर्द, ठीक है. पर मैं अगला सवाल में पहले मैं वील कम बैक टू यू सर. प्रेरणा जी, आपसे एक बात पूछनी थी मेरे को. यू नो यू समवन हु अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, राइट? तो आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है बिटवीन मेल इमोशनल सप्रेशन एंड मेल अग्रेशन, जो कि धीरे धीरे करके वायलेंस बन जाता है? आपको लगता है उसकी वजह से भी कई आदमी वायलेंट हो जाते हैं? बिल्कुल. पर पहले मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगी कि मेल्स के राइट के बारे में बात करने के लिए औरतों के बारे में उनको नीचा दिखाना या ये बोलना कि ब्रेस्ट कैंसर में पैसे लग रहे हैं और प्रोस्टेट में नहीं लग रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्टेट का इशू है. और सब में लगने चाहिए पैसे, ऐसा नहीं कि एक में पैसे लगना ज़रूरी है. ऑफ कोर्स इमोशनल सप्रेशन और अग्रेशन और वायलेंस का बहुत बड़ा रिलेशन है. सबसे पहले तो हम पेट्रियार्की की जो बात करते हैं, सबसे पहले वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहाँ पे वैल्यू इस चीज़ को दी जाती है जहाँ से विल हो वायलेंस करने का. चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, जो कि सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ वायलेंस है, बट उससे नीचे अगर आएंगे तो सबसे पहला जो मंजर है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस का है. वो हमारे सारे बच्चों के साथ होता है. मैं जब सप्रेशन की बात सोचती हूँ तो जो एक कॉन्वर्सेशन में रह जाता है वो सबसे पहली कड़ी है, वो है यंग बॉयज, यंग पीपल, जहाँ से ये सोशलाइजेशन शुरू होता है. साइकोलॉजिकल टेररिज्म बोलती हैं इसको बेल हुक्स, जो कि एक बुक भी लिखी है उन्होंने, विल टू चेंज मेन, मैस्कुलिनिटी एंड लव. उसको साइकोलॉजिकल टेररिज्म बोलती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ट्रांस बच्चा हो या इंटरसेक्स बच्चा हो, उनको आंखों से उनको कंट्रोल किया जाता है. शेम कर करके, कमेंट्स कर करके उनको रोल्स में डाला जाता है, डब्बों में डाला जाता है, जहाँ से वो सीखते हैं. उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है सोचने के लिए कि पेट्रियार्की का मतलब ये है कि आप कुछ दायरों में ही रहें. और वो जो जब हम लोग को आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि वायलेंस कब होता है, जब वो देख पाते हैं कि वायलेंस करने से ही सोशल कैपिटल मिलता है. चाहे वो बातों से हो, चाहे वो थप्पड़ से हो, चाहे वो पावर डोमिनेट करने से हो. पर इसमें बहुत ज़रूरी है समझना कि पेट्रियार्की आदमियों को काफ़ी पावर इस वे में दे देता है कि जब वो वायलेंस करते हैं तो उनको एजेंसी भी मिलती है इस चीज़ की करने की. और आप देखेंगे हमेशा कि वो अपने से, अभी मैं एक दोस्त से ही बात कर रही थी जो कि यहाँ पे भी हैं, वो बोल रहे थे कि अगर किसी मेल को अपने बॉस से कुछ लड़ना है तो वो थोड़ा सा धुतकारेंगे और बोलेंगे कि ठीक है मैं काम कर लूँगा और फिर हो जाएगा, या एक बियर पी लेंगे. पर अगर वो वायलेंस कहीं और डायरेक्टेड है, जैसे कि किसी मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के मर्द पे, या कोई उनके घर पे हेल्प करने आए हैं, या कोई औरत हो या बच्चे हों, तो उन पे अलग तरीके का वायलेंस आता है, चाहे वो बातों से आए, चाहे वो किसी भी वे में आए. तो मैस्कुलिनिटी की जो बात है वो ये बात नहीं है कि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में जूझता है. ये R.W. कॉनेल एक स्कॉलर हैं जो कि बोलते हैं हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी, जो कि पेट्रियार्की बनाती है. और वो एक ऐसे बॉक्स में रख देती है मैस्कुलिनिटी को कि हमें लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द हो ही नहीं सकता. पर जब हम उसको मैस्कुलिनिटी को थोड़ा फेमिनिस्ट लेंस से देखें, जिसको एक बहुत ही डरावना शब्द बनाया गया है, जैसा कि आपने बोला कि मैं एक मैन हूँ बट आई एम ऑल्सो अ फेमिनिस्ट, यू आर अ मैन एंड यू आर ऑल्सो अ फेमिनिस्ट.
You're not just a man, but and you are a It feminist. doesn't get taken very easily. मतलब It's- people actually, and I was actually told also that if you're a man, then you can't be a feminist. You I said, can why? be a feminist. इससे क्योंकि औरतें ही feminist होती हैं, हमने कहा बिल्कुल ऐसा समझ आया नहीं मेरे है, को। बिल्कुल ऐसा And a नहीं। woman can be a chauvinist also. I mean, बिल्कुल इसमें कोई वो डेफिनेटली। दिक्कत सो नहीं है। जेंडर स्टडीज करने का ही ये मतलब है। आज मेरे को कोई कुछ लोगों ने जैसे ही मैं आई उन्होंने बोला कि आप क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन ही करती हैं, तो है बोला नहीं, हम लोग का पूरा सब्जेक्ट है। मैं 5 साल से ये कोर्स कर रही हूँ और इसमें हम सारे जेंडर्स और कैसे ये इंस्टीट्यूशन जो है, फैमिली, स्कूल, स्टेट, इन सबसे पावर आता है, जो कि वायलेंस सबसे ऊपर देखा जाता है। हम लोग को साइकोलॉजिकल वायलेंस समझने की जरूरत है, इमोशनल सप्रेशन को हम लोग को समझने की जरूरत है कि वो एक तरह से दबाने की कोशिश है, जो निकलता कब है, वो वायलेंस में निकलता है। जी, मैं इसके पहले कि मैं आई ओपन इट फॉर एवरीवन, मेरे को आपसे एक और सवाल पूछना है। यू नो, रिप्रेस सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में लिखते भी हैं, पर समहाउ सेक्स इज अ बिग टैबू। बहुत अजीब सी बात है कि इस बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉन्डम की भी ऐड आ जाए तो उसी टाइम पे फैमिली में जो है सब पॉपकॉर्न लेने चले जाते हैं, या किसी को बाथरूम जाना होता है, बिकॉज कोई टीवी ऑफ नहीं करना चाहता, कोई ये भी ओनस नहीं लेगा, अगर हटाना भी चाहते नहीं हटाएंगे, बट चुपचाप इधर होके दे गेट वेरी अनकम्फर्टेबल विद इट। तो क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सेक्स, दैट ऑल्सो समहाउ कैन इफेक्ट अ मैन और अ वुमन्स मेंटल हेल्थ? डेफिनेटली। सबसे पहले तो सेक्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी के हिसाब से सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्स होता है सिर्फ, जिसकी वजह से अभी जो हम पिछले पैनल में भी बात कर रहे थे कि रेप जो है वो सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स को माना जाता है। तो कपड़ों के ऊपर भी अगर रेप किया जाए तो उसको रेप नहीं माना जाना, ये सब उसी आइडिया से आता है कि सेक्स सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स है। पर उसके वो जब हम लोग सोच लेते हैं तो उसके 3 दायरों में वो इफेक्ट करता है। सबसे पहला है बॉडी इमेज, हम लोग के यंग लोगों को कैसे अफेक्ट करता है बॉडी इमेज, कि वो कैसे दिखना चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो सिर्फ वो ऐसे नहीं है कि सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्स, जब आप खोल के देखेंगे इस कैटेगरी को तो वो एक अट्रैक्शन है, वो एक ऐसा तरह है जिससे लव भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेजर बट एक बहुत लस्टी वे में देखा जाता है सेक्स को। तो सबसे पहले उसको खोलने की जरूरत है। जब हम बॉडी इमेज की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ पे हमारे सबसे पहले यंग लोगों पे अफेक्ट आता है, और उसके बाद है डिजायर, कि आप किसको अपना पार्टनर समझ सकते हैं। अगर हम मेन की मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात करना चाहिए हमको कि आप किसको पार्टनर बना सकते हैं। क्या वो सिर्फ एक महिला होंगी? क्वियर और ट्रांस लोग जो हैं वो अगर सेक्स का जो एक अगर धारणा आप रखे पेनिट्रेटिव सेक्स, तो फिर उनका तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल बॉक्स में हो गया ना, वो तो बाहर बात ही नहीं कर सकते, तो उनकी मेंटल हेल्थ का क्या। और जो हम लोग के क्या कहते हैं, जो ट्रांस महिलाएं हैं या जो ट्रांस मेन हैं, उनका तो कोई भी, अगर हम लोग फिर से सेक्स को पेनिट्रेटिव समझे तो उनको कोई कुछ नहीं माना जाएगा। और सबसे तीसरी बात जो है वो कंसेप्शन ऑफ बॉडी इटसेल्फ है, कि आपको कैसा दिखना चाहिए, माचो मैन, मेल मैन, और ये सारे जो कंसेप्शंस हैं। और दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि एकदम ही नहीं होती है सोसाइटी में, गुड टच बैड टच की जगह अगर सेफ और अनसेफ टच करके देखें तो आपके बॉडी के और हिस्से जो हैं पर्सनल पार्ट्स के अलावा वो भी डेंजरस बन सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे छूना भी खराब हो सकता है। और ये बहुत वियर्ड बात है कि सिर्फ कुछ पार्ट्स को पर्सनल पार्ट, प्राइवेट पार्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हैंड भी पब्लिक हैंड थोड़ी है, ये भी मेरा प्राइवेट हैंड ही है ना। जी है ना? जी। तो ये सारे कॉन्वर्सेशंस इतने डर के बेसिस पे, फियर बेस्ड होते हैं, डिजीज ओरिएंटेड होते हैं, हार्म ओरिएंटेड होते हैं। और मर्दों को जब बोला जाता है मेन के बारे में, क्योंकि ये सेशन है तो मैं बोलना चाहूंगी कि उनको बोला जाता है डोंट रेप, डोंट रेप, डोंट रेप, डोंट बी वायलेंट। अगर आप वैसे बात करना ही शुरू करेंगे, अगर आप अपने यंग लड़कियों को एक सेशन में ले जाएंगे जहाँ पे बोलेंगे ये है पैड, ऐसे पीरियड होता है, और वो फर्स्ट पीरियड वो जो है वो फ्री पीरियड पीटी करने के लिए दे देंगे और लड़कों को साथ नहीं ले जाएंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। और इसीलिए हम लोग को जो फेमिनिज्म है, जिसको हम इतना दूर और भयभीत करके रखते हैं कि इसको पास मत आने दो, बिल्कुल दूर रखो, जब उस लेंस से हम देखना इन चीज़ों को शुरू करें तो हम ये भी कहेंगे कि साइंस को लाना शुरू करते हैं। हम सब में एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन हम सब में होता है। राइट। बस ये है कि जो ये इमोशंस हैं
जो ये हॉर्मोन्स हैं ये कुछ एक्शन से ट्रिगर होते हैं। हमारे यंग मेन को इमोशंस ना फील करने दिया जाए तो उनका एस्ट्रोजन ट्रिगर नहीं होता है, तो वो वायलेंस में चला जाता है। मैं पिछले अपने क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। तो इमोशंस का जब यूज ना करें, और हम औरतों को जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि बहुत उपद्रवी हैं, तुम्हारा पीएमएस चल रहा होगा या तुम मेनोपॉजल हो गई हो, उन औरतों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये साइंस, सोशल साइंस जब हम अलग करके रख देते हैं तो ये कॉन्वर्सेशंस अलग हो जाती हैं। और बस एक लास्ट बात कहना चाहूंगी कि जब हम अपने यंग बॉयज को देखते हैं तो जब उनको एंगर फील करने दिया जाता है, सबसे पहले उनको फियर फील करने दिया जाता है और कोई इमोशन नहीं फील करने दिया जाता, और गलती वही है हमारी। एम्पैथी की जरूरत है, पावर और आइडेंटिटी की बात करना जरूरत है, और वो करेंगे तो वायलेंस भी एड्रेस होगा और मेन का मेंटल हेल्थ भी एड्रेस होगा। वेरी वेल सेड। बरखा जी, आप कुछ ऐड करना मैं कुछ कहना चाह रही थी, छोटा सा। देखिए, जेंडर स्टडीज़ की हमने यहाँ बात करी, तो मैंने पीएमओ में ऑलरेडी कई ईमेल्स लिखी हुई हैं कि जब आप स्टडी करते हैं तो महिलाओं के ऊपर जो स्टडीज़ है, आपने पुरुषों के लिए कोई स्टडी नहीं करी, होमलेस मैन के ऊपर कोई स्टडी नहीं करी उनकी। जब हम अभी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इस मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए। आत्महत्याओं से हत्याओं पे हम पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हमारे पास कोई रिकोर्स नहीं है। तो इसके ऊपर हम जितनी बातचीत करेंगे, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी भी फोरम में फेमिनिस्ट हो या कोई फेमिनिस्ट ना हो, सबको मिलजुल करके इसके ऊपर बात करके हार्मनी क्रिएट करनी है, एक बैलेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में, और वही एक बेहतर भविष्य होगा। भारत का बेहतर उज्जवल भविष्य होना भी चाहिए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमिंग बैक टू यू, कि आदमी जो है अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर नहीं करते हैं, राइट? आपको क्या लगता है क्यों नहीं करते हैं? आर दे अफ्रेड ऑफ बीइंग पोर्ट्रेड एज समवन वीक? I'll answer this, लेकिन पहले मैं कुछ और बताऊंगा। आप कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, पहले कुछ और बताते हैं। नहीं बता रहा हूँ। See, I'll tell you, you want value or you don't want value. You want to go without value, fine. The point is how many seconds you are giving me. Like 20 seconds I should talk. Good, I will do that. हाँ, मैं थोड़ा छोटा बोलेंगे सर, बिकॉज वो बजर बता देंगे, अगला सेशन है। The whole point is that if you want this answer, yeah, I'll give you one sentence. हाँ जी। Because you see, I'll tell you one thing. We are an academic research organization more than we are an activist organization. Okay. हम लोगों ने 20 साल, we have centers all over India and we have helped more than 1 lakh people. Wow. Men are coming to us, they are not going to therapists. In spite of whatever tragedies have happened, we have saved more lives. So you have to understand that what works, that people have come to us, they are not going to therapists. What works? And they stay with us, right? It's just that we are a little short on time. तो आप बताइए, अपना जवाब बताइए। मैंने आपके दिमाग में डालना था। Tell me, दिमाग में डालना how जरूरी much था। time did you give other panelists? सर, ये इस पैनल में तो कम टाइम मिला सबको। No, did you? No, right here we have a bias going on. No, we are giving you time. By the way, I'm not eager to tell you. You know. सर, 1 मिनट तो इसमें निकल गया, आप बताइए ना। See, just free here. time. See, you are saying that somebody should share vulnerabilities, but you don't have the listening space. टाइम है ना सर, कुछ तो how much time I should speak? हमें क्या पता, बोलिए सर, आप बोलिए। No, please tell me how much time should I speak? आप बताइए सर। प्लीज गो ऑन सर, प्लीज गो ऑन, नोबडी गोइंग टू इंटरप्ट यू। Okay. जितना टाइम इनको दिया उतना मैं दे एक बार दीजिए। बोल दूंगा, then I will not talk. हाँ जी, ठीक है, आराम से। See, I'll tell you one thing, that we as a research organization, we do not 100%, we see the flaws in patriarchy theory. आप लोगों के लिए पेट्रियार्की इज लाइक अ सॉलिड थ्योरी, हमारे लिए पेट्रियार्की थ्योरी इज नॉट नुआंस्ड, सो वी अनकोलैप्स इट। तो हम, जैसे न्यूटन थ्योरी है, वो परफेक्ट नहीं है, आइंस्टाइन थ्योरी आया, कुछ दूसरा थ्योरी आया, राइट? आप लोगों को लगता है कि ये पेट्रियार्की एक ही थ्योरी, उसमें हम सारा दुनिया बता देंगे, और टाइटैनिक क्यों डूबा, पेट्रियार्की था, क्यों यहाँ पे कोई अरेस्ट हो गया, पेट्रियार्की था। दिस इज ए वेरी स्टीरियोटाइप, जो जिससे किसी की हेल्प नहीं हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी लुक एट इट, बिकॉज वी हैव आवर ओन थिंग्स। We accept patriarchy as a theory, but we know its flaws. तो एक बहुत बड़ी चीज है, you said actually, but you didn't emphasize, there is an empathy gap. Okay? So the male to male empathy gap is very, very low. Very, very low. Woman to man is still there. Woman to woman empathy is the highest. And there is a significant gap. Let me put it in another way, another research, similar thing. There is something called gender difference in automatic in-group bias. What is an automatic in-group bias? Let's say you are from Delhi.
So you have an in-group bias towards Delhi people. You will be biased towards Delhi people. होता है ना? Similarly, men are biased towards men, women are biased towards women. Let us say. Now there is a 5 times gap. That means, in short, जो newspaper headline है, पढ़ लो, men dislike men 5 times more than women dislike women. Okay? So this is the nuanced, uncollapsed approach. और इसके अंदर में और एक चीज हम लोग जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं ना टॉक्सिक masculinity, we don't use that phrase because it again gets into the same demonization of men. So we use something called as misandry and we call it internalized misandry. जैसे आप internalized misogyny बोलते हो, हम internalized misandry बोलते हैं. And for us, internalized misandry is everything. In fact, 90% of the problem in the whole world, including us, is internalized misandry. That means men hate men. And I, as an expert, can measure what is the internalized misandry in Delhi, what is in Puri in Odisha, and what is in Bangalore. So when I come from Bangalore to Delhi, I experience shock because I have trained myself. So there is a nuanced approach where we measure all these things. Yeah, so that's where I want to conclude. And if you want further research, you can contact us if somebody is a student or something, because people have done PhDs on us. By the way, there are foreign people also have done PhDs on us. Those papers are there, Srimati Basu, Jackery Palmer and all, pata karo, men's rights. They have done from a feminist perspective. So there I conclude. Yeah. पर सर आपने बायस की बात की पर आपने हम सबको एक ब्रैकेट में डाल दिया बिकॉज आपने हर बात के पहले बोला कि तुम लोग यू लोग आप लोग ऐसा सोचते हैं मेरे को भी डाल दिया आपने उसमें मैं तो मॉडरेटर हूँ सिर्फ मेरा को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आप तो खुद ही गलत आप खुद बायस रख रहे हैं बैलेंस इज रिक्वायर्ड हाँ जी व्हिच आई फील इज बेटर वे मैंने आपको मौका ही नहीं दिया आप पहले मैं मॉडरेटर हूँ रुको आप बरखा जी आप कुछ कहना चाहती हैं बोलिए मैं बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं आ रहा है कौन आगे है कौन पीछे है अरे इतना खूबसूरत रिश्ता है मर्द और औरत का इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं हो सकता कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं बायोलॉजिकल नीड्स हमारे अलग अलग है हम एक दूसरे के बगैर सरवाइव भी नहीं कर सकते अगर यहाँ पे पुरुष नहीं बैठे हो तो महिलाएं अकेले बैठ के क्या करेंगी अगर यहाँ अकेली महिलाएं बैठी हो तो भी मजा नहीं आएगा तो हम एक दूसरे के पूरा घर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें अगर आज एक पुरुष समाज के साथ कुछ अन्याय हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे और एक हमारी जो बहनें हैं वही हमें सपोर्ट कर रही है इस काम में और इससे अच्छा क्या हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि बरखा जी की बात ठीक है पर आई थिंक अगर सारी महिलाएं होती हैं सारे मर्द होते तब भी हम मजे कर सकते थे अपने आपस में ऐसा कुछ नहीं है तभी मेल पार्टीज होती हैं फीमेल पार्टीज होती हैं पजामा पार्टीज में अक्सर लड़कों को नहीं बुलाया जाता या लड़कियों को नहीं बुलाया जाता वहाँ बहुत मजा आता है मैम कैसी बात कर रहे हो पर मेरा आप मत बोलिए आपके बड़ा अच्छा सवाल है आपके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात ये जो बात हो रही है कि men don't seek help you are the right person to answer this कि why do you think men don't seek help and through your studies have you seen कि बहुत सारे लोग अब आने लग गए थेरेपी के लिए क्योंकि एक टाइम था जब मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा टैबू था बट देन वी सॉ अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आई डोंट वांट टू टेक नेम्स उन्होंने आगे आके इस बारे में बात की तो ये टॉपिक थोड़ा खुला तो डू यू सी अ लॉट ऑफ मेन सीकिंग थेरेपी नाउ या आपको लगता नहीं अभी भी कुछ नहीं बदला एटलीस्ट इन द urban setup Let's just ask how many people seek help before asking men don't seek help. थेरेपी एज अ प्रोफेशन बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है बट थेरेपी एक्सेसिबल भी बहुत लोगों के लिए नहीं है करेक्ट और ये पूरा जो मैम ने आपने जब आप पिछले सेशन में रेज किया था कि हम लोग को कैसे विजिबलाइज करने की ज़रूरत है सारी कैटेगरीज को रिलीजन कास्ट क्लास जो आपने भी बोला कि अर्बन स्पेसेस में कितना एक्सेस कर पाते हैं तो वो भी बहुत कम सेक्शन जिनके पास वो सोशल और फाइनेंशियल कैपिटल है वो दोनों होने का जरूरत है अगर आपको सीख भी करनी है थेरेपी चाहे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं 10,000 बार सोचूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे हैं और चाहे मेन कर रहे हो क्या वो सपोर्ट जो है वो कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट है या नहीं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है तो थेरेपी सीख करना और उसका एक्सेस पा जाना ये इंश्योर नहीं करता कि आप वापस आ रहे हो और आप केयर्ड और सपोर्टेड रहेंगे तो एक कम्युनिटी बेस्ड केयर की ज़रूरत है जो कि मिसिंग है बहुत ज़्यादा मिसिंग है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की केयर नहीं हो पाती है तो men are sure the conversation has opened up and celebrity speaking about it makes it much better because they are opening up about it but please ask कि वो उनका open up होना भी कितने लोगों को impact करेगा और जब हम लोग जेंडर स्टडीज़ की मैं बस एक रिस्पॉन्स देना चाहूँगी जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं एक मैम ने
पॉइंट बोला था, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ही है जो कि फंडिंग काट देती है सोशल साइंसेस का। मैं अपने बैच में 10 लोग थे, हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और मैं अपने बैच में एक अकेली हूँ क्योंकि हम लोग को फंडिंग नहीं मिला है। और वही गवर्नमेंट है, क्योंकि मर्द का मर्द होना, मर्द का इन इंस्टीट्यूशंस में जाना उस मर्द बन के, और उस फैमिली की सैंक्टिटी बनाए रखना, उन कास्ट स्ट्रक्चर्स को बनाए रखना, वो तभी हो पाएगा अगर जेंडर स्टडीज जैसी चीजें नहीं हो रही होंगी, अगर ये स्टडीज नहीं हो रहे होंगे, अगर कास्ट के बारे में बात नहीं हो रही होगी, अगर मेन के वल्नरेबिलिटी के बारे में बात किया तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ब्रेक होना पड़ेगा। तो मैं इसके पहले कि मैं आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा, आई एम जस्ट द मॉडरेटर ऑन दिस सेशन, इनके व्यूज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे व्यूज मेरे। बट नितिन जी यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि जेंडर स्टडीज हो नहीं रही है, सिर्फ एक तबके की बात सुनी जा रही है, दूसरे की नहीं सुनी जा रही है। उनकी कोई स्टडीज नहीं है और मर्द रोता है, लेकिन उसकी सुनवाई कौन कर रहा है? कौन सा पटल है? आप में से कोई, सबसे सवाल है, यहाँ बैठे जितने लोग हैं सबसे एक सवाल है, आप बताइए मेल्स के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, वो कहाँ कॉल कर सकते हैं? पुनीत खुराना, अतुल। एक मिनट, आप मैं नंबर नोट कीजिए, बरखत रेहान पुरुष आयोग, ये है रेडी है हेल्प करने के लिए। कमाल कर रहे हो आप, क्योंकि स्टेट दरबार, आप यही चाहते थे कि वो यही बोले बरखत रेहान द्वारा। आपको क्या लगता है, मैं अगर जेंडर स्टडीज कर रही हूँ तो क्या मैं औरतों के बारे में बात कर रही हूँ? तो मैं आपके साथ इस पैनल पे कैसे? नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ डेटा नहीं है, डेटा की बात कर, इशू है मैडम, डेटा की बात। मैं तो जो सेंसस 2011 से मैं तो सरकार को लिख रही हूँ, आई ओपन द स्टेटमेंट मैडम, कि मैंने सरकार को लिखा नहीं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना, अभी जो मुंबई में टीसीएस का मैनेजर मर गया था, मानव शर्मा, या मुजफ्फरनगर में जिस लड़की ने अभी कॉफी में जहर दिया, ये सारे परिवारों को मिल के आई हूं, और उन्हीं परिवारों में से ये बात निकल रही है कि हम तो डाइवोर्स फाइल करके आए थे, हमारी कहीं सुनवाई ही नहीं होती, ना पुलिस सुनता है, ना लीगल सिस्टम हमारी सुन रहा है। द होल सिस्टम नीड्स एन ओवरहॉलिंग। अतुल सुभाष ने क्या कहा था? मेरा ही पैसा मेरे अगेंस्ट यूज हो रहा है। मैं अतुल सुभाष के पिताजी माताजी दोनों से कितनी लगातार कितने घंटों की मुलाकात में मैंने उनकी व्यथा देखी, लेकिन आज हमने एसी कमरों में बैठ के बात ही तो कर ली। अतुल सुभाष तो चला गया, लेकिन उनके माता पिता कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जी। तो क्या बदल गया? उनके ब्रदर भी आज आए थे। हाँ, तो क्या बदल गया नितिन जी? कुछ नहीं बदला। मैम ऐसे देखिए, मैम लेट्स फेस इट, एक तो वी आर शॉर्ट ऑन टाइम और यहाँ बात करने से कुछ बदलने नहीं वाला है, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने आए हैं। आई विल क्विकली टेक 2-3 क्वेश्चंस इफ यू वांट टू, एंड इफ यू वांट टू डायरेक्ट इट टू अ पर्टिकुलर स्पीकर तो आप बता दीजिएगा। आप वहां बैठे हैं, अपना नाम बताइएगा और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। खड़े होकर सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास मोदी है, मैं अतुल सुभाष का भाई हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग अवे एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू जी, पूछिए। मैं सुबह से सारे स्पीकर्स को सुना हूँ और कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सिस्टम से लेके पॉलिटिशियंस तक, क्या आप अलाउ करेंगे इस मंच पे बोलना? देखिए, अगर आप डायरेक्टली किसी को एड्रेस नहीं कर रहे तो ठीक है, बिकॉज मैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, बट पॉलिटिशियंस तक है बात। तो मैं आपको वे बता रहा हूँ कि कहाँ से चीज़ें खराब होनी शुरू होती है। जी, सबसे पहले तो एक फेक केसेस की जो चीज़ें चलती आ रही है उसमें सुबह सुबह स्टार्टअप्स के नाम लिए गए थे। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बायोडाटा पोस्ट करते हैं बट उसका वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है? तो सबसे पहले इश्यूज वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आज के डेट में। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा, जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो है बच्चे हो जाते हैं तो उस बच्चे को एज ए टूल यूज किया जाता है, जैसे मेरे भाई के केस में हुआ और हो रहा है। एक भारत में तो ऐसा नहीं होता कि कोई माँ 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में रख देती है और उसका मेंटेनेंस केस कोर्ट में चल रहा होता है, और मेंटेनेंस में जो जज बैठी हैं वो महिला बैठी हैं, वो महिला जज जो हैं वो कहती हैं कि 40,000 रुपये बच्चे को दे दिया जाए एज ए मेंटेनेंस, और वो इंटरिम मेंटेनेंस जब से वो केस फाइल हुआ है तब से वो 40,000 रुपये मिलेगा, विच इज़ 80,000 रुपीज़। तो ये कहाँ तक ठीक है, ये सोचने की ज़रूरत है। और इस देश में जिस हिसाब से कानून की चीज़ें चल रही हैं, करप्शन का जो चीज़ें चल रहा है, अभी रिसेंटली एक करप्शन का मामला सामने आया है जजेस का। क्या जजेस के ऊपर कोई केसेस लग सकते हैं? ये हम सब लोग देख रहे हैं कि कोई केसेस लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। मेरे भाई के केसेस में सरेआम मांगा गया, जज ने 5 लाख रुपए मांगे, उसके ऊपर हमें मना कर दिया गया कि एफआईआर मत करो, नहीं तो पहले हमें पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी हाईकोर्ट से उनको गिरफ्तार करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अनिल तो जी, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। अनिल इस जी, सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या हम बैठे पॉलिटिशियंस
यहाँ पे बैठ के क्या उनको ये केसेस नहीं पता चल रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए? जी, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे ये चाहूंगा सर, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ, बिकॉज यू आर मोर सेंसिबल अबाउट दिस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर सब्जेक्टिव। आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नो, आई विल, हाँ जी, आई विल टेक केयर। हाँ जी। तो आप कुछ इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे आप? एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू ऐड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मतलब यही मैं बोलूंगा कि यू नो अतुल हिमसेल्फ सेड देयर इज अ मेल जिनोसाइड गोइंग ऑन। ओके, देयर इज अ मेल जिनोसाइड। अब गाजा में जिनोसाइड हो रहा है, आप बोल रहे हो, वी कॉल दीज सुइसाइड्स एज जिनोसाइड। आप जैसा वेपनाइज किया ना, डाउरी डेथ को वेपनाइज करते हो, निर्भया को वेपनाइज करते हो, तो हम अभी लोगों ने लिख दिया मीडिया में अतुल सुभाष का डेथ को वेपनाइज किया हो, क्योंकि अतुल सुभाष के केस में यह हुआ। उससे पहले तो जो लाखों मरे हैं उनकी क्या, यू नो, हम लोग तो 2005 से कर रहे हैं ना, जो लाखों मरे हैं उनके बारे में तो किसी ने बात नहीं किया ना। मतलब इट वाज नेवर, ये टिप ऑफ, ये पूरा एकदम देयर इज अ टिपिंग पॉइंट, राइट? एंड एक बार टिपिंग पॉइंट एक बार क्रॉस होता है तो वी गो टू अ डिफरेंट स्टेट। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड एंड यू शुड बी केयरफुल। टुमारो सम चाइल्ड डाइज, देयर विल बी राइट, देयर कैन बी पथराव, सोशल अनरेस्ट। वी पीपल हैव स्टॉप्ड दैट थिंग। अदरवाइज इंडिया में ना इन लोग इंसेल बनेंगे, टेट बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, हम लोग रोक के रखे। And here we are kind of not allowed to speak or something, but we are warning you. We are the good people trying to stop the society from going there. Otherwise, बच्चे गए ना एक बार, अमेरिका में जो हुआ है ना हाई स्कूल वाला सिचुएशन, उससे भी खराब सिचुएशन हो जाए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप रोक के रखिए इनको, that's good. आप एक और क्वेश्चन, you want to add something? No, I just wanted to say कि अतुल जी के केस के बारे में बात करने के लिए निर्भया का वेपनाइजेशन बोलना, या ऐसे केसेस जो कि इतने सेंसिटिव है उसके बारे में बात करना, या गजा जेनोसाइड से उसको रिलेट करना और उसको मिनिचराइज करना। जी जी सर, उसका कोई जरूरत नहीं है। आप प्रेरणा जी, आई थिंक कुछ बड़ा है, छोटा नहीं है। Do you know, men spit on our face. We are trying to save men. Yeah. Spit on our face. And still we continue. And I ask every man, 5 साल पहले तू कहाँ थे? आज तो विक्टिम है ना। 5 साल पहले क्या कर रहे थे? बियर पी रहे थे, IPL में जा रहे थे। Let me tell you, in this call, in this particular talk, I am not nice to men. Don't think that I am nice to men. I have empathy for men. But इनकी जो nonsense है ना मर्दों की, जो रास्ते में ठोक पीट करके जो नागालैंड में आदमी की जो लिंचिंग हुई है ना, it haunts us even today. जो आदमी की पूरा स्किन निकाल दिया गया, वो मुस्लिम आदमी था। Let me tell you this. दीमापुर लिंचिंग जो हुआ है, किस लिए हुआ? इंडिया में इतने लिंचिंग इंसिडेंट जो बड़े थे, वो वहीं पे हुआ कि लोगों ने, बॉलीवुड ने बोला है, I will come to that, बॉलीवुड ने बोला कि जनता को दे दो। लोगों ने फिर पहले रेपिस्ट को लिंचिंग किया, बाद में मोलेस्टर को लिंचिंग किया, बाद में सबको लिंचिंग किया, and discontinued for 7-8 years. There is a scientific background before this. You should be discussing this. Otherwise, same घिसा पिटा टॉपिक तो हम ऐसे भी पढ़ रहे हैं। जी, आज लेकिन टॉपिक से कुछ और है, तो we will any question, can we have the lady over here please? इनको वहीं से बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी, छोटा सा हॉल है, बोलिए। Hi, I'm Sushma Rao. We are, I'm not asking a question, I'm asking a question, also giving a solution. Just like how we have, just like how we have valuation of pollution for cars, why can't we have a valuation of person's mental wellness from the government as a requirement for each and every individual to come out of all these criminal things, because we're working exclusively on mental wellness. And I think that will be the next epidemic and a pandemic in the whole world. मैम, हम तो इतने सारे लोग हैं, सबके लिए करना तो बड़ा मुश्किल है। No, it should be a part of the, it should be a part like Arogya Setu. जी जी, just like Arogya Setu, I think this should be taken into. चलिए, आपका सुझाव ले लिया हमने, and I'm hoping कि जो लाइव देख रहे हैं अथॉरिटीज वो पक्का इस बारे में कुछ सोचेंगे। एक लास्ट सवाल आप पूछते ही सर, आपने सारा वीडियो भी बनाया तो आप पूछ लीजिए, हाथ भी थक गए होंगे आपके। थैंक यू, वेलकम। Last question for the day, please. My name is Nalin Savara. I'm a divorced 40-something male. Firstly, my kudos and deep respect for Anil ji and the lady over here. And I just want to say that, you know, if you go and you write on the Facebook page of a feminist group with 1 lakh followers that men's rights are important to, or my friends are men's right activists and they would disapprove of it, so it will get 40 or 50 or 100 haha reacts. And that's just how bad it is, because, you know, somebody might not agree with some aspects of a men's right thing.
They may say that men are anyways the privileged section. They may say 100 things. Hear me out. They may say 100 things, but you cannot just disenfranchise and invalidate somebody's lived experience by insisting कि अरे हाँ तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम जवाब आवाज निकालो. So I think that aspect of sensitization is very important, and dialogues and discussions like this really help to that. So my heartfelt thanks to Nitin Bhai and all of you panelists, and also to Leher for organizing this wonderful summit. And I want to say something to you. I want to say something to you. एक तो आप ये बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया को इतना अपने दिल पे हावी मत होने दीजिए. वहाँ किसी की शक्ल नहीं है, कोई आके कुछ भी लिखता है. I think we take it to heart a little too much. इतनी लाइक्स आ गई, किसी ने मेरे को हा कर दिया. आप बॉदर ही मत कीजिए इन सब चीजों के लिए. ऐसे फोरम चूज कीजिए जहाँ पर आके अपनी बात कह सकते हैं. This is much better. देखो नितिन, to say that आप उस जगह बात ही मत करो जहाँ पे कोई हा करे is not the thing. The thing is that it's a barometer of society. With all respect, I'll just end this. You can't hold back over there. No, but anyone will say anything. No, but the thing is that it's about normalizing something. It's about normalizing a certain conversation. And my point in saying thank you to all of you and to Leher is to say that it's only through initiatives like this, on which a bunch of people have worked very hard and where you have also given your valuable time, that conversations will be normalized. Absolutely. Those conversations have to become normalized, and then only we can expect justice. Thank you. Otherwise, every new law will be a tool to just push a narrative and crush people. Absolutely. Thank you so much. I think that's all we have time for today. जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ. एक तो हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए कि chauvinism is not about hating women and feminism is not about hating men. I think what we need to do is strike a balance जहाँ पर चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, सबको equal opportunities मिले, किसी के साथ भी कोई त्रासदियाँ ना हो. With that note, thank you so much for coming over here. God bless you all. मैं हूँ खुराफाती नितिन. Thank you so much. I would request the PAP team to be on the stage for the photographs and the distribution of the goodie bag.